Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel, that is hashtag Vinay's Vision, and I'm your personal auxiliary Vinaypanekar. Tuning up right back with another important video. In this video, we are going to talk about Science 2, textual importance. Touchwood and finger cross, everything what I gave you in Science 1, out of that, many of the things reflected from the textbook itself. And I'm so glad that you guys have been commenting so great in the comment section. Now it's my time to give you an importance of Science 2. So whatsoever, wherever you are right now, just make sure that you're holding your Science 2 textbook in your hand and also a pencil with it. Grip onto the important question, star mark it or put a hashtag, but make sure that you just practice it a lot. Alright, we move on to the very first chapter, that is hereditary and evolution. Alright, now in the index, the important chapters are 1, 2, 3, 4, 6 and 8, out of which we are going to the first chapter right now. In the first chapter we get important right on the page number 4, evidence of evolution. Morphological evidence, can you just find out? Paleontological evidence, anatomical, vestigial. ये आपको ऐसा करके एक चार्ट भी आ सकता है जो आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी. मेक श्योर करना आप उसको लिख दो. वेस्टिजियल ऑर्गन को प्लीज़ इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. वेस्टिजियल ऑर्गन आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ सकते हो जो पेज नंबर 5 पे है. If not in form of short note, if they'll ask you in the form of objectives, आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप इसको लिखो कि विजडम टीथ, ईयर मसल्स, अपेंडिक्स, ये सब क्या है, ह्यूमन के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, मंकी टेल बोन भी है. ऑलराइट, देन आगे जाते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट. डार्विन का जो आंसर है, डार्विन थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, विच इज़ राइट ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 7, वो इंपॉर्टेंट है. उसको प्लीज़ स्टार मार्क करना क्योंकि वो डेफिनेटली थ्रू आउट द टाइम बहुत सारे बार पूछा गया है. ऑल राइट, लमार्कमिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको रेफर करना है आपको पेज नंबर 8 पर. एंड इसी के साथ में हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन के आंसर पे आते, तो ये इतना बड़ा आंसर आपको कभी भी नहीं पूछेंगे उन लोग. तो ये बात ध्यान रखना कि आप होमोसेपियंस कौन है, नियंदरथल इज़ एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट वाइस मैन. ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो इसमें से, अगर आ गया तो आप ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इसको लिख सकते हो. ऑलराइट, आगे जब मैं बढ़ूँगा तो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन करके आंसर है. एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन आप अच्छे से देख लेना पेज नंबर 10 पे. देयर आर 2 गिव रीजंस. गिव रीजन नंबर 1, ह्यूमन एवोल्यूशन बिगन अप्रॉक्सीमेटली 7 crore years ago and there is evidence of fatal signs among chordates. उसको पढ़ लेना. Then when we move on to the next chapter, chapter number 2, life process in the living organism. In this chapter we have got very important diagram right onto the page number 13, that is a human respiratory diagram. Just make sure that you are marking it because it was asked earlier in the examination. Moving on, then we got page number 14 में there is always remember का डब्बा, nicotinamide, adenine dinucleotide, NAD full form and FAD full form. तो just hashtag it because that may be asked to you. Introduction to scientist, क्रेब्स कौन था वो उसको आपको मार्क करना है. और उसके नीचे क्रेब साइकिल के नीचे एक बड़ा सा डायग्राम दिया है आपको ग्लूकोज इसका रेस्पिरेशन का, तो मेक श्योर करना आप उसको मार्क करो क्योंकि वो 5 मार्क्स का भी डायग्राम है, वो आपको पूछ लेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा. पेज नंबर 15 पे है. ऑलराइट, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग के पास पेज नंबर 16 है. 16 में ना आपको एसिड्स के बारे में बताया गया है जो बॉडी के अंदर रहती है, तो आप प्लीज़ उसको मेक श्योर करना कि आप उसको भी अच्छे से कर लेते हो एक बारी और उसका अच्छे से रेफरेंस डाल देते हो. On page number 18, we come across, then we will find out, can you recall के नीचे there's a diagram of chromosome. Haven't you got it? ये इसको mark करना important. All right. Then we have got on next page. Moving further, when we talk about this chapter has got importance in the form of activities. So make sure करना कि activities आप इसका एकदम perfect तरीके से करके जाओ. Distinguish between में आपको page number 21 में question number A, B is important. Equally C भी important है, but I have only take to A. Alright. And then we move on to give scientific reason. Repeatedly asked question is fibers are the important nutrients. Krebs cycle is also known as citric acid cycle. Alright, this is where we move on to the second chapter, so third chapter के ऊपर. Third chapter में when we are going to talk about, we will find out questions coming from budding. Alright, so page number 24 पे we have got 25 पे budding question. Alright, then we got Hydra is reproduced to budding is the answer. Then vegetative propagation को एक बारी देख लेना. Coming on to this page number 26, flower diagram. Flower diagram is also an important diagram. This have been asked before dinosaurs came into extinction.
सो मेक श्योर करना कि ये वाला क्वेश्चन भी आप प्लीज़ अच्छे से रेफर कर लेना इसको. ऑलराइट, देन उसके पहले वी हैव गॉट, उसके बाद में वी हैव गॉट सॉरी ऑन पेज नंबर 28, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, it can be asked to you in the form of objective. In objective they will ask testis produce dash hormone, तो testosterone होगा वहाँ पर. Alright, what is the function of prostate glands or vas deferens, what is the function of urinary bladder, ये सब आपको पता रहना चाहिए. Alright, then when we move on, वो पेनिस के डायग्राम को आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको स्टार कर रहे हो और उसका लेबलिंग्स जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो. Then as we move on for the head, we have got this ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहाँ पर भी आप एक बार स्टार कर लेना और इसको लेबलिंग के फॉर्म में इसको एक बार अच्छे से बाय हार्ट कर लेना. ऑलराइट, देन व्हेन वी मूव फर्दर हेड वी हैव गॉट स्पर्म एंड ओसाइट का डायग्राम, एंड दैट इज़ वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओसाइट किस तरीके से आके स्पर्म को अटैक करते हैं. आई एम सो सॉरी, स्पर्म किस तरीके से आके ओसाइट को अटैक करते हैं, विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस डायग्राम. Yes or no? 46 chromosome, 44 chromosomes वाला आंसर. लाइक क्वेश्चन ये रहेगा आपको, द सेक्स इज डिटरमाइंड ऑफ अ बेबी बाय द मेल पार्टनर. तो आपको वो आंसर को जस्टिफाई करने आना चाहिए. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू चैम्पियंस? देन व्हेन वी मूव फर्दर हेड, आई वांट यू टू गो ऑन टू 31 पेज नंबर. मेंस्ट्रुअल साइकिल करके एक बड़ा सा ब्रीफ क्वेश्चन है यहाँ पर. ये जो ब्रीफ क्वेश्चन है इसको स्टार आउट कर लेना, बिकॉज यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. Alright, then when we move further ahead, we have got this answer of reproduction of modern technology. IVF क्या है, surrogacy क्या है, sperm bank क्या है, twins क्या है, ये सभी एक बार आपको रिवाइज कर लेना है क्योंकि वो मॉडर्न मेथड में से IVF आपको आने के चांसेस ज़्यादा हैं. एंड reproductive health, how will one maintain sexual life and reproductive health, ये वाला आंसर आपको पढ़ना ज़रूरी है. Not just for the namesake of studying this answer, but for personal life also, it's very important for you to understand how to keep your reproductive health perfect and proper. Alright, so here we have got question number 8. Gender of child is determined by the male partner of a couple, which is important. Modern techniques like surrogate mother on page number 35 is important. Alright, also we need to make sure that all the fill in the blanks you go across with, and also know that what will be the answer for what underlinings. Next, moving on to the fourth chapter, environmental management. Environmental management may come on to this page number, which is 37. On 37, we got a big ecosystem chart, of which I'm going to give you a perfect explanation of the diagram, and we are going to just help it out. तो ये वाली चीज़ को आपको मार्क करना है. Alright, पेज नंबर 37. आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 38 पे. वी हैव गॉट फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, नेचुरल फैक्टर्स एंड मैन मेड फैक्टर्स. उसको भी स्टार्ट कर लेना. आगे बढ़ेंगे 39 पे. वी हैव गॉट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन का डिस्टिंग्विश. आज आपको जैसे वो सैटेलाइट के बारे में आया था, वैसे ये वाला डब्बा आपको कल आ सकता है एग्जाम में, तो प्लीज़ उसको एक बार रिवाइज कर लेना. नीड फॉर एनवायरमेंटल कॉन्वर्जेशन इज ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट wherein you can be asked this question in the examination for 2 to 3 marks. Please उसको revise करना. And we move on to the next page, that is on page number 42. मोलाई जादव, मोलाई पयोंग. Alright, तो ये आपको एक बारी क्या करना है, इसको I'm so sorry. इसको एक बारी रिवाइज करना है, which can help you get good marks. And on page number 43 we got this thing called sacred grooves, short note important. इसको भी आप स्टार आउट कर लेना. माई रोल इन एनवायरनमेंट, मेरा रोल क्या है एनवायरनमेंट में, इसको आप अच्छे से एक बारी प्लीज़ रिवाइज कर लेना, विच विल मेक योर वर्क मोर ईजी एंड क्लियर. ऑन पेज नंबर 45 वी हैव गॉट दिस endangered species, rare species, vulnerable species question. Please revise it. And on page number 46 we got what are the meanings of the symbols, write your role accordingly. इसका मीनिंग क्या है और उसका रोल लिखो अपने हिसाब से. ऑलराइट, आगे जब मैं बढ़ूँगा, ग्रीन एनर्जी करके चैप्टर है. ग्रीन एनर्जी करके चैप्टर के अंदर मैं आपको बता दूँ इतना कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बट जो भी ये फ्लो डायग्राम है ना, एक बारी इसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना. ये फ्लो डायग्राम को, ये फ्लो डायग्राम में इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता है फ़िलहाल इसके लिए ये चैप्टर से है. ये चैप्टर अगर आपको अवॉइड करने का भी ऐसा फीलिंग आता है तो इसमें से प्लीज़ फ्लो डायग्राम को कर लेना. बाकी अगर ये चैप्टर को आप स्किप कर दोगे तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट एज एंड व्हेन वी मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पर देखो ये एडवांटेजेस ऑफ पेज नंबर 54 पे
एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और प्रॉब्लम्स क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, ये एक बारी प्लीज़ रिवाइज कर लेना, ये आ सकता है शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपको। ऑलराइट यार, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर आई गेस। on next chapter we have got our next chapter is all about animal classification, that is on page number 61. Alright, while I'm on this chapter, I want to tell you that on this particular chapter, here you need to make sure that everything is important right from page 1. Right from page 1, you cannot skip out anything. You have to have a glance reference of this chapter and also have a glance reference of textbook and whatever notes you have got from your school, because this chapter carries a lot of weightage and is important from a board exam point of view. Alright, पेज नंबर 1 पे जो डायग्राम दिया हुआ है इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप प्लीज़ इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके डायग्राम्स कहाँ से भी पूछे जाते हैं हमेशा एक बोर्ड एग्जाम में। जब मैं पेज नंबर 64 पे आऊँगा, एक जेलीफिश करके डायग्राम है जो आपको पूछा जाएगा। 65 में आपको ह्यूमन बॉडी को आपको क्या करने का है, उसके ऑर्गन्स मेंशन करने का है। ऑलराइट, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर पेज नंबर 60 सारे आपको तो डायग्राम रेफर करना ही है, बट पेज नंबर 69 पे फाइलम आर्थ्रोपोडा है। 69 में आर्थ्रोपोडा को प्लीज़ स्टार कर लेना। कॉकरोच का जो डायग्राम है पेज नंबर 66 पे, उसको मार्क कर लेना। ऑक्टोपस को 70 पेज नंबर में प्लीज़ मार्क कर लेना। उसके डायग्राम के लेबलिंग्स आपको याद रहना चाहिए। उसी तरीके से जब मैं आता हूँ पेज नंबर 72 पे, वी हैव गॉट सब फाइलम कैफिलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। उसको एक बारी अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड एग्ज़ाम में आया तो आपको लिखने आना चाहिए। बट जब मैं ये वाले पेज पे आता हूँ जो है अपना व्हाट इज दिस पेज नंबर, वी हैव 73 में वी हैव गॉट पाइसेस, साइक्लोस्टोमाटा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया। ये 6 में से कोई एक ना एक आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये बात ध्यान रखना कि आप ये 6 को एक अच्छा रिविजन दे रहे हो और 4 पॉइंट्स सबके आपको आने चाहिए। इतने इस बात का ये वो करना कि आप कंफर्म वो कर रहे हो, ऑलराइट, रिवाइज कर रहे हो। जब मैं आगे बढ़ूँगा पेज नंबर इस चैप्टर के एक्सरसाइज में आऊँगा तो गिव साइंटिफिक रीज़न के सारे साइंटिफिक रीज़न इंपॉर्टेंट है और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना आना चाहिए जो है क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, आगे जब मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पर वही नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा पेज नंबर 76 पे कि यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट है और लेबल द डायग्राम है। ये डायग्राम्स को और चार्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको डेफिनेटली मिल जाते हैं पूरे 2-3 मार्क्स, जो भी जितने भी मार्क्स के लिए आएगा ये। ओके, नेक्स्ट वी कम ऑन टू 7th चैप्टर, अगेन मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर। कमिंग ऑन टू दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। मुझे बताना है आपको कि चैप्टर नंबर पेज नंबर 77 से ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल का क्या है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के मेन फीचर्स क्या है, वो आपने मार्क कर लिया। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो पेज नंबर 79 पे विनेगर प्रोडक्शन करके क्वेश्चन दिखा आपको। पेज नंबर 80 पे वी गॉट दिस प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस को आपको स्टार मार्क करना है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे पेज नंबर 81 पे कि सब्सटेंस ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग और इसके रोल्स क्या है, इसको एक बारी आपने पढ़ लेना है, रिवाइज करना है बस। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से वो आपको मैं बताता हूँ इन दी एंड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना, सीवेज मैनेजमेंट को किस तरीके से करना चाहिए, इसको आप अच्छे से बाय हार्ट कर रहे हो। ओके, दिस हैज़ टू बी बाय हार्टेड। देन वी मूव फर्दर अहेड, वी हैव गॉट दिस थिंग ऑन पेज नंबर 86 I told you, as I said, that I'm going to tell you which answers are important. Answer the following में, how can the soil be polluted by acid rain made fertile again? Alright चैम्पियंस, ये बात ध्यान रखना क्लासिफिकेशन चैप्टर में से और ये चैप्टर में से और इसके आगे वाला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का, ये बात ध्यान रखना आपको कि ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के क्वेश्चन आंसर्स को आपको बहुत तगड़े तरीके से रिवाइज करना है कि आपको इधर पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको एनलार्ज करके लिख पाओ। इन साइंस 1 आपको सब कुछ कॉन्सेप्चुअल वाइज लिखना था, बट इन साइंस 2 देयर इज नथिंग लाइक दैट। You can write anything which comes and fit into the concept of this answer. Alright, you cannot leave the paper blank. When we move further ahead, we have got on page number 86, why is it necessary to ban the use of plastic bags? और वहाँ पर 2 complete the map है, you know this picture, conceptual map.
xanthan gum और microbes. प्लीज़ उसको रेगुलर रिवाइज करना क्योंकि वो एग्ज़ाम में आ जाएगा आपको एग्ज़ाम में. आई एम सो गॉड डैम श्योर ऑफ इट. देन वी हैव गॉट पेज नंबर 87 में which fuels are obtained from biomass, how does the bread become spongy is also an important answer. We move on further ahead. We have got page number 90 पे we have got organ transplantation करके आंसर. उसको प्लीज़ आप स्टार कर लीजिए क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है. एंड उसी पेज में हम लोग 91 पे देखते हैं कि व्हाट आर द ऑर्गन्स यू रिक्वायर्ड फॉर डोनेशन, विच ऑर्गन्स कैन बी डोनेटेड. ओके, पेज नंबर 91 में बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेज नंबर 91 पे आपको दिख गया ही है. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 93 पे. व्हाट आर वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन. ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में इंपॉर्टेंट ये आंसर है, इसको प्लीज़ स्टार आउट कर लीजिए. देन वी गॉट अदर आंसर ऑन पेज नंबर 95. डॉली द शिप. ऑल राइट, डॉली द शिप कैसी क्लोन हुई थी, किस तरीके से बनी, ये आपको पता रहना चाहिए. इसका आप यूट्यूब पे वीडियो दे सकते हो जिसकी वजह से आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स इफ़ यू आर वेरी मच डन विद द आंसर by having a glance to any of the video. On 96 we have got Green Revolution, MS Swaminathan and Dr. Norman. इन लोगों का नेम द फॉलोइंग में आपको आ सकता है. आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना. जिस तरीके से आज स्वयं सैटेलाइट के बारे में पूछा गया था, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है. तो ऑन पेज नंबर 97 टॉप पे आप उसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. देन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. उसके पहले वी हैव गॉट पेज नंबर 100 पे ऑब्जेक्टिव्स. 100 पे जब ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है. मैच द कॉलम दोनों इंपॉर्टेंट है. राइट द करेक्ट आंसर इन ब्लैंक एंड सर्कल. यूज ऑफ स्टेम सेल इज इंपॉर्टेंट. आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशन. यहाँ पर ए और यहाँ पर डी इंपॉर्टेंट है. आगे जब हम लोग जाएंगे यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स. विच प्रिकॉशंस विल यू टेक ड्यूरिंग स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, वो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. और उसके नीचे आपको मेरिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट मैप दिखेगा. अगेन दैट इज इम्पॉर्टेंट. ऑल राइट, एज वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 9th and 10th डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सोशल हेल्थ. This chapter are a blessing in disguise because it is coming in the form of an EVS chapter to you. So you can write down anything that suits the concept which has been asked to you in the question. Alright, it is not like that you are supposed to only learn the answers by headed point wise and then you are supposed to write down the answer. No, if you have understood the question meaning, any words which makes the sentence framing perfect will be the only answer to the question that is asked. Alright. On page number 101 we have got factors affecting the social health. ये सारे फैक्टर्स को आपको अच्छे तरीके से याद करना है. इसमें से मिनिमम 10 फैक्टर्स आपको अच्छे से पता रहना चाहिए. आगे हम लोग जब बढ़ेंगे पेज नंबर 102 पे मेंटल स्ट्रेस के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है. मेंटल स्ट्रेस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना. फिर आगे बढ़ के हम लोग जाएंगे 103 पे. तो आपको दिख रहा है आपको एक बच्चे को मम्मी खींच रही है, आजा बेटा अंदर. नेक्स्ट एंड वहाँ पे दूसरी मम्मी है जा. ऑलराइट, तो ये आपको अगर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आपको इसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए. ओके, विच कैन बी टर्नड अप इन द पेपर फॉर 3 marks. ऑलराइट, 1.5 marks फॉर द जाने वाला एंड 1.5 marks फॉर आने वाला. तो इट शुड डेफिनेटली हैपन. ऑलराइट, आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आपको इसको लिखने का है. आगे जब मैं बढ़ूँगा तो आगे आपको दिख रहा है यहाँ पर पेज नंबर 105 पे वी हैव गॉट साइबर क्राइम एज द आंसर. यस और नो? टिल लास्ट ईयर दिस वाज कैंसल्ड एंड कट. दिस ईयर सिंस द पोर्शन इज 100%, तो 110% आई मस्ट टेल यू कि ये साइबर क्राइम वाला आंसर आने के चांसेस है. ऑलराइट, एंड देन वी मूव ऑन टू फर्दर क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 106 107 पे. हैव अ रेफरेंस. ये मुंबई सलाम मुंबई फाउंडेशन टोबैको एंड गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या है, ये सब नेम द फॉलोइंग फॉर्म में आपको आ सकता है फ्रॉम द सेम चैप्टर. आगे जब जाते हैं पेज नंबर 108 पर 108 पर व्हाट विल यू डू. यू गॉड डैम बिलीव मी स्टूडेंट्स चैम्पियंस कि हम लोग को पता है ये व्हाट विल यू डू वाला क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन था, ये 5 मार्क के लिए आया था एग्जाम में. एंड कैन यू जस्ट बिलीव आपने स्टूडेंट्स लोगों ने इसको इतने इस तरीके से लिखा था लास्ट टाइम. सो आई रियली एक्सपेक्ट कि इस टाइम भी कुछ ऐसा जादू हो जाए और आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए. आगे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आपको गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच दिख रहा है. हॉबीज टू रिड्यूस स्ट्रेस, एक्टिविटीज़ अंडर द जुरिसडिक्शन,
ये इसको अच्छे तरीके से क्या कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, आगे जब मैं बढ़ूंगा ऑन लास्ट चैप्टर दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर वी हैव गॉट क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम पेज नंबर 110, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, जियोफिजिकल, बायोलॉजिकल एंड मैन मेड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज करना। पेज नंबर 111 पे टाइप्स ऑफ डिजास्टर, इकोनॉमिक डिजास्टर क्या होता है, सोशल डिजास्टर क्या होता है, एनवायरमेंटल डिजास्टर क्या होता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए। आगे जब मैं बढ़ूँगा यहाँ पर आपको देखिएगा पेज नंबर 113 पर और 114 पर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, विच आई माई सेल्फ के नॉट फाइंड विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट आंसर हो गया। आई हैव मार्क्ड इट येस। प्री डिज़ास्टर, पोस्ट डिज़ास्टर, किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करने आना चाहिए वो आपको पता रहना चाहिए। इधर पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम लोग जाते हैं यहाँ पर ये वाला डायग्राम जो पेज नंबर 115 पे है कि किस तरीके से डिज़ास्टर मैनेज किया जाता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल और तालुका लेवल पर, वो आपको एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है। ओके, आगे जब हम लोग आते हैं पेज नंबर 116 पे, यहाँ पर आपको डायग्राम्स दिख रहे होंगे जिसका आपको मीनिंग बताना है। फ्लेमेबल लिक्विड का मतलब क्या है, फ्लेमेबल गैस का मतलब क्या है, एक्सप्लोसिव का मतलब क्या है, विच विल मेक योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर। अगर ये डायग्राम्स आते हैं तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट। ओके, आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन नहीं करना है, वॉट एवर यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम एंड आपने रेफरेंस डालना है, एक बारी वो क्वेश्चन आ जाएगा, आपको उसको लिख देना है। ऑलराइट, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट पेज की तरफ आ रहे हैं, पेज नंबर 117। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड क्या है, क्यों हम लोग फर्स्ट एड करते हैं, क्यों मॉक ड्रिल करते हैं, पेज नंबर 118 पे उसको आपको स्टार करना है। एक्सरसाइज पे आ रहे हैं फाइनल चैप्टर के जो है पेज नंबर 119 पर कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, मोटर एक्सीडेंट, लैंडस्लाइडिंग, फॉरेस्ट फायर, थेफ्ट, डिज़ास्टर क्या है, सिम्टम्स क्या है, इफेक्ट क्या है, रेमेडी क्या है, वो रिवाइज करके आपको पेज नंबर 120 पे ये रिवाइज करना है कि सिंबल्स के मीनिंग क्या है। ये आपने रिवाइज कर ली, आपका काम हो जाएगा आराम से, आसानी से। यही मुझे बताना था आपको कि ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंस है ये सब टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंस है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। जिस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंस जो टर्न अप हुए थे साइंस 1 के अंदर, आई रियली होप एंड प्रे कि ये साइंस 2 में भी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करे। चैम्पियंस और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए डालने वाला था, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना एंड डेफिनेटली कमेंट करने मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, अंटिल वी मीट, ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।